Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is even and odd function of Fourier series. How to solve this Fourier series when function is even and odd term. These conditions for the we check to our function is a even or odd. Firstly, we will put the value of x is equals to minus x in our functions. Then we check function of minus x is equals to positive of function value, so function is a even. And if put the value of x is equals to minus x in functions and output of the functions is negative of function's value, so the function is odd. And for the formula for we find the Fourier series in interval minus c to c, same interval in opposite direction, negative and positive, then we will find integration values of function in interval minus c to c is equal to 2 into integration of 0 to c, change in a form of interval in minus c to c to 0 to c multiply by 2 into f of x dx when f of x is even. And also we check this method for even and odd. And same interval for the function integration minus c to c integration function of x dx is equals to 0 when function f of x is odd. And also we know that f of minus x is equal to minus function of x, so function is odd. Now we take examples. Find a Fourier series to represent this function f of x is equals to x square in an interval minus L to L. So given function is f of x is equals to x square. This is the first equation. First we check or the function is even or odd. We take x is equals to minus x in equation number first. F of minus x, because we take x is equals to minus x in equation number first, so f x replaced by minus x and x is replaced by minus x whole square. Minus x whole square, that is the x square, and we see that the answer is also a x square. In equation number first, f of x is also a x square, so this positive function, that means f of x no will change in functions in take x is equals to minus x. So this function is even. And for solution of even function minus c to c function of x dx integration of function of x in interval minus c to c 2 into 0 to c function of x dx. So we find a0 and an and bn for finding Euler's theorem. Euler's formula
f of x is equals to a0 by 2 plus summation of n is equals to 1 to infinite a n cos n pi x upon L or C plus summation of n is equals to 1 to infinite b n sin n pi x upon C. Equation number second, where a0 is equals to 1 by C integration minus C to C f of x dx. So a0 is equals to 1 by C in interval L. So L, we take L. Interval is L minus L to L. So we take replace by C in L. Minus L to L f of x 1 by L. And we know that the function is a even function. So replace by 2 into 0 to integration 0 to L f of x dx. 1 by L 2 into 0 to L f of x is x square dx. So a0 is equals to 1 by L 2 into x square is x cube by 3 0 to L. So 2 by 3L x cube 0 to L, and a0 is equals to 2 by 3L L cube minus 0. So 2L sorry 2L square by 3. This is the value of a0, and also we find value of n. an is equals to 1 by L minus L to L function of x cos n pi x upon L dx. an is equals to 1 by L 2 into 0 to L f of x is x square cos n pi x upon L dx. an is equals to 1 by L. First function is by parts. We solve this integration by method of by parts of integration. First function is x square and second function is a cos n pi x upon L. So by parts formula, first function integration of second function is sin n pi x upon L minus integration differentiation of first function 2x and cos means sin n pi x upon L dx 0 to L, and 2 is also 2 by L. an is equals to 2 by L. First function is x square sin n pi x upon L minus, and 2 is a constant, and then upon n pi upon L. So 2 by 2L by n pi is common. Integration x into sin n pi x upon L dx. Integration 0 to L. an is equals to 2 by L x square sin n pi x upon L minus 2L upon n pi. Now repeat this method by parts method. First function and second function. First function integration of second function, that means minus cos n pi x upon L upon
एन पाई एक्स अपॉन एल, सॉरी एन पाई यहाँ पे भी वही आएगा, अपॉन में डाल देते हैं यहाँ पे एन पाई एक्स अपॉन सॉरी एन पाई अपॉन एल। फर्स्ट फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स, एक्स एंड साइन इज माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस टू सॉरी एन पाई एक्स अपॉन एल अपॉन एन पाई अपॉन एल डी एक्स। ए एन इज इक्वल्स टू 2/L, कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर से 2/L एन पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा L अपॉन एन पाई, ये कॉमन निकल गया है। यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2L अपॉन एन पाई, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये कॉमन निकल चुका है, ये भी कॉमन निकल चुका है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये होल अपॉन में हो जाएगा फिर एन पाई अपॉन एल 0 to L। यहाँ पे आ जाएगा फिर 2, L से L कैंसल आउट होके 2 अपॉन एन पाई एक्स स्क्वेयर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल माइनस 2L अपॉन एन पाई माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल एन पाई, एल अपॉन एन पाई, और ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन एल 0 to L। पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यूज जो है, तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2n पाई, यहाँ पे हम जो है l पहले पुट कराएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वेयर साइन, यहाँ पर जो है n पाई आएगा साइन एन पाई माइनस 2L पाई अपॉन एन पाई, 2L अपॉन एन पाई, और यहाँ पे है माइनस L कॉस, यहाँ पे जब L पुट करेंगे तो L और L कैंसिल हो जाएगा, कॉस एन पाई प्लस L अपॉन एन पाई, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन एन पाई। सेकेंड टाइम जब हम जो है 0 पुट कराएंगे, साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो है x मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं रख लेती हूँ यहाँ पे, तो 2 अपॉन एन पाई, यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वेयर साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0 माइनस 2L अपॉन एन पाई माइनस, तो यहाँ पे रखते हैं माइनस L कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 to the power n, और यहाँ पे जो है यह आ जाएगा 0, L अपॉन एन पाई इंटू 0। सारे जो वैल्यूज है मैं यहाँ पे लेती हूँ, क्योंकि साइन एन पाई इज इक्वल्स टू 0, कॉस एन पाई इज इक्वल्स टू -1 to the power n, ए एन इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एन पाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 2L स्क्वेयर अपॉन एन पाई -1 to the power n, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा ये 2L, दो सब में जो है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2L अपॉन होल स्क्वेयर एंड -1 का पावर n। तो इस तरीके से जो है n की वैल्यू आई है यहाँ पे
माइनस में। अब यहाँ पे हम जो है सबकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए एन निकाल लेते हैं यहाँ पर से। एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए वन आ जाएगा हमारे पास 2 L² अपॉन पाई होल स्क्वायर। यहाँ पे ए जो है नेगेटिव में आ जाएगा ये। A2 जब पुट कर A2 में जो है यानी कि एन इज इक्वल्स टू जब पुट करेंगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा ये। यहाँ पर से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। L अपॉन पाई आएगा, पाई का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। A3 जब रखेंगे तो यहाँ पे जो है 2/3 L पाई होल स्क्वायर माइनस में आएगा ये एंड सो ऑन। इसकी वैल्यूज को जो है हम फॉर यूलर्स फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है जो बताना चाहूँगी। जब हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज़ इवन हो तब के लिए जो है यहाँ पे जो यूलर्स फॉर्मूला है वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिट ए एन। यहाँ पे जो कॉस एन बाई एक्स अपॉन एल तो होगा, लेकिन सिर्फ बी एन वाला टर्म्स है वो बी एन जो है वो 0 हो जाता है। तो ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है जब एफ ऑफ एक्स इज इवन हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फ्रॉम 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिट ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल बी एन इज 0। एफ ऑफ एक्स जो कि हमारा जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a0 की वैल्यू जो हमारे पास वो आई है 2L²/3 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिट और ए एन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4L², इस तरीके से आया है ये 2L अपॉन एन पाई इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू -1 टू द पावर एन है। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जब हम जो है एन समेशन हटा देते हैं एन इज इक्वल्स टू 1 to फाइनाइट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2L²/3 प्लस 1 रखने पर जो है हमारे पास a1 की वैल्यू आई थी वो है हमारे पास -4L²/पाई²। जब 2 रखा था हमने तो वो आया था 4L²/2² पाई²। a3 रखने पे आया था 4L²/3² पाई² एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया है 2L²/3 इसमें हम जो है कॉस्ट नहीं दिए हैं तो इस लाइन को हम कहाँ लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2L²/3 प्लस यहाँ पे जब जो है एन इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तब उसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2L अपॉन पाई स्क्वायर कॉस 2π/3 विथ एक्स एन इज इक्वल्स टू जब हमने पुट किया तो यहाँ पे 1 पुट किया तो ये πx अपॉन 3 और यहाँ पे जो है ये नेगेटिव में आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सामने में माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 2 यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो L/पाई आ जाएगा यहाँ पे से तो L/पाई स्क्वायर में और ये पॉजिटिव में आ जाएगा ये कॉस यहाँ पे आएगा ये 2πx अपॉन एल, ये जो एल है तो ये एल ही हो जाएगा ये -3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/3 L अपॉन पाई में स्क्वायर कॉस 3πx अपॉन एल एंड सो ऑन। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2L²/3 और फिर यहाँ पर से जो है हमारे पास सब में जो कॉमन है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है कॉमन बचेगा हमारे पास
प्लस देखते हैं यहाँ पे इसमें जो है हम माइनस सहित कॉमन निकालते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म ही हमारा नेगेटिव में है, तो उसको हम जो है माइनस कॉमन निकाल दिया है। और यहाँ पे जो है वो एल भी कॉमन है और पाई भी कॉमन है सब में। साथ ही साथ जो है हमारे पास यहाँ पे टू भी सभी में है, तो ये हम जो है कॉमन निकाल लेते हैं। मीन्स 2l अपॉन जो पाई है नेगेटिव के साथ में वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास कॉस पाई एक्स प्लस यहाँ पर जो है ये जो है हमारे पास क्या बचेगा 1/2 स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 2 कॉमन निकालें हैं तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास जो है 4 बचा हुआ होगा। यहाँ पे जो है 2 कॉमन निकाले हैं ना, तो यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा। तो 1/4 यहाँ पे 1/4 मीन्स 2 का स्क्वायर 2/2 हो गया। तो यहाँ पे 2l अपॉन पाई हमने कॉमन निकाला, ये 2 का स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये 1/2 स्क्वायर कॉस यहाँ पे जो है 2 पाई एक्स अपॉन एल, फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे जो है 2l अपॉन पाई कॉमन निकाल दिया, तो ये 1/3 का स्क्वायर बचा हुआ है, ये कॉस 3 पाई एक्स अपॉन एल एंड सो ऑन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2l स्क्वायर बाई 3, इसको हम जो है सॉरी यहाँ पे माइनस 2l अपॉन पाई स्क्वायर, और यहाँ पर जो है बचेगा हमारे पास कॉस पाई एक्स अपॉन ये l बचा हुआ है यहाँ पे अपॉन l, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 का स्क्वायर करते हैं क्योंकि सब में जो है अल्टरनेटिव फॉर्म पे जो है ये सभी नेचुरल नंबर्स की जो है होल स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल, और यहाँ पे जो है माइनस 1/3 स्क्वायर कॉस 3 पाई एक्स अपॉन एल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये सीरीज मिला है, यही हमारा जो है फोरियर सीरीज है फॉर द फंक्शन एक्स स्क्वायर इन इंटरवल -l to l। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो है ये इवन और ऑड फंक्शन के लिए एक फोरियर सीरीज मिल गया। स्टूडेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन पे जो है चूँकि हमारा जो फंक्शंस है वो जो है एक इवन फंक्शन मिल गया है, और चूँकि जो क्वेश्चन है वो सेम इंटरवल अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, तो ऐसे कंडीशंस में अगर फंक्शन जो है आपका इवन हो, है ना भाई, तो इवन होने पर जो है मैंने बताया था इवन हो तो bn जो है वो 0 हो जाएगा। यही कंडीशन जो है ये ऑड के लिए अप्लाई होता है, जब f ऑफ x जो है ऑड हो तो वहाँ पे an जो है 0 हो जाएगा। ऑड के लिए जो है an जो है 0 हो जाता है, तो आपको ये कंडीशन याद रखना है। ये जो है हमारे क्वेश्चंस को जो है बहुत ईजी बना देता है सॉल्व करने के लिए, तो आपको बहुत ही यहाँ पे ईजिली पड़ेगा ये। थैंक यू स्टूडेंट।